Hello, students. Today we're going to start with a new chapter, and that new chapter is labor costing. Labor costing, as we have understood that in material costing, material cost is calculated generally as price into quantity. In labor cost, we need to calculate labor cost in which manner? How we can calculate labor cost? Hours into rate per hour. Any other method? Hours into rate per hour. Any other method? Skilled labor, unskilled labor. But how do we make payment? We have to talk with respect to cost. Cost is payment. So can I say one is on the basis of hours, second on the basis of output, units. Sometimes it will be both time as well as units. Okay, hours need not be only hours, it can be days, it can be month. Okay, but generally it is daily basis in normal routine. Suppose out of 30 days, if you have not gone for 10 days, so 10 days salary will be deducted. Okay, so sometimes it's on basis of hours or days, or somewhere it is made up of purely what? Units, output. How do professor get a payment? Generally it is on hourly basis. So as many numbers of hours I give here, my payment is calculated accordingly. So somewhere it can be fixed salary also, so that can be called as daily basis. Is that very clear? Okay. Now labor cost is calculated in two ways. One, hours into rate per hour, and units into rate per unit. Now the question arises, should there be bias? Should there be bias? Meaning एक लेबर को कम पैसा देना, दूसरे लेबर को ज्यादा पैसा देना. क्या ऐसा बायस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसा होना चाहिए कि सबको सेम होना चाहिए? किसको? Suppose all are cost accounted, तो सब सेम होना चाहिए. एफिशिएंसी के ऊपर. ओके, एफिशिएंसी के ऊपर. इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं. जब आप फर्स्ट जॉब जाओगे ना, फर्स्ट जॉब के लिए वो ये देखेंगे कि तुम्हारी डिग्री कितनी है, तुम्हारी पढ़ाई कितनी है. क्योंकि आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन दे विल गिव यू पे. बट सेकेंड जॉब एंड उसके ऑनवर्ड्स they will not see only your qualification. Your qualification will just be a certificate point, but they will see your experience. क्या आपने experience, कैसा experience आपको मिला है, and उस हिसाब से आपका package decide होता है. मतलब even though there are so many chartered accountants and cost accountants, but उनका package being on the same profile, किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है. Being in the same level, in the same company, in the same industry, so the packages are going to differ. In this particular scenario, एक word है सर, efficiency देखी जाती है.
How to calculate efficiency? Efficiency can be calculated since labor cost is calculated in two ways. Efficiency is also calculated on the basis of hours and on the basis of units. On the basis of hours and on the basis of units. अभी कैसे पता चलेगा कि ये एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट? How will I calculate whether a particular labor is efficient or inefficient? कैसे कैलकुलेट करूं? तो how it will come here? कुछ फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला होगा ना? क्या? What could be the formula? Let me tell you, efficiency कम या ज्यादा, डोंट यू थिंक उसका मतलब कंपैरिजन होगा? कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन के लिए कम से कम दो डेटा चाहिए. कम से कम कितना डेटा चाहिए? दो डेटा चाहिए. तो मुझे अगर लेबर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो वो दो डेटा क्या होगा? अगर आवर्स के बेसिस पे one is standard hours and second is actual hours. Standard hours and second is actual hours. Standard hours का मतलब कितने आवर्स में काम होना चाहिए था. You should have completed this work in how many hours? That is called as which hours? Standard hours. Then what is actual hours? Actual hours आपने actually वो काम कितने आवर्स में कंप्लीट. ठीक है? ओके. सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स तो क्या होना चाहिए? इतने आवर्स में कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे. दैट्स कॉल्ड एज स्टैंडर्ड आउटपुट. एंड एक्चुअल आउटपुट यानी आपने कितने यूनिट्स बनाए. ठीक है? तो नाउ कंपैरिजन. तो अभी फॉर्मूला बनाइए, दो चीजें तो दे दी. तो फॉर्मूला एफिशिएंसी इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन व्हाट? परसेंटेज. एंड हाउ डू वी कैलकुलेट दैट परसेंटेज? तो वो एफिशिएंसी परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है. एंड हाउ डू वी डू इट? तो सर परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 100. तो अब न्यूमरेटर क्या होना चाहिए और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? तो मेरे पास वो दो डेटा है. इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में SH बोलूंगा, AH बोलूंगा. इसको मैं बताऊंगा SO और यहाँ पे AO. तो बताइए न्यूमरेटर में क्या हो और डिनोमिनेटर में क्या हो? आई एम सॉरी, एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड. तो यहां पे क्या होना चाहिए? देयरफॉर एक्चुअल आउटपुट अपॉन, राइट? ये होना चाहिए. अभी चेक करते हैं क्या अपना ये फॉर्मूला जो है वो राइट है कि. देखो कुछ कुछ जगह पे मैं फॉर्मूला डेरिवेशन बताता हूं. क्यों बताता हूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि उसका लॉजिक बहुत छोटा है और वो हम लोग क्लासरूम में कवर
कर सकते हैं, इसलिए बताता हूँ। कुछ कुछ जगह पे मैं डेरिवेशन नहीं बता सकूंगा तो मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा भाई ये फॉर्मूला वैसे का वैसा है। ऐसा क्यों आया? बहुत ऐसे कम फॉर्मूलाज है जहां पे मैं उसका लॉजिक आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज द टाइम इज वेरी वेरी शॉर्ट एंड दैट लॉजिक के लिए मे बी हमें दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज होना, एक्स्ट्रा नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है, साइंस है, उन सब का अगर हमें नॉलेज बरोबर नहीं रहेगा तो हम वो फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं समझ पाएंगे, ये फॉर्मूला कैसे बना। लेकिन सिंपल लॉजिक है तो जहां जहां सिंपल लॉजिक्स है मैं वहां पे एक्सप्लेन करूं। लेट अस सी कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है। ए बी सी 3 पीपल, उनको एक काम दिया था जो कितने आवर्स में कंप्लीट होना चाहिए था, 10 आवर्स, लेकिन उन्होंने कितने आवर्स में कंप्लीट किया? तो आप बताइए कौन कितना एफिशिएंट है? कहना से 10 घंटे का काम ए ने 8 घंटे में खत्म किया, तो ऐसे बंदे को तुम एफिशिएंट बोलोगे कि इनएफिशिएंट बोलोगे? एफिशिएंट, यानी इसका परसेंटेज कहना से मोर देन 100 होना चाहिए। इसने 10 घंटे का काम 10 घंटे में करके दिया, तो कहना से न्यूट्रल, ज्यादा भी नहीं है और तो कहना से इसको न्यूट्रल बोलूंगा, मतलब इसका एफिशिएंसी इक्वल टू 100 बोलूंगा, और ये कहने से इनएफिशिएंट है तो लेस देन 100। ठीक है, ओके। नाउ मेरा सवाल है, अभी हम अगर ऐसा चीज है, लेट मी टेल यू, क्या ये फॉर्मूला यूज करके हमें वैसा आ रहा है क्या? AH/SH इंटू 100 करके देखो भाई, कहने से 80, 100 एंड 120 आ रहा है। क्या ये मेरे ऑब्जर्वेशन को मैच कर रहा है? मतलब ये फॉर्मूला गलत है। तो क्या हो सकता है? अगर AH/SH नहीं हो सकता तो क्या होना चाहिए? जरा चेक कीजिए ये फॉर्मूला, चेक कीजिए प्लीज। 125, हाँ, 10/12, हाँ, 83.3333, राइट। कहने से ये मैच कर रहा है। हेंस अगर मुझे आवर्स के बेसिस पे चाहिए तो दिस इज अ रॉन्ग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होना चाहिए? SH/AH इंटू 100। तो मुझे तो लगता है शायद से यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? SO/AO इंटू 100। जो भी है यार, हम लोग एक्सपेरिमेंट, हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद द फॉर्मूला। हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया ये फॉर्मूला के बेसिस पे, मतलब हम जो सोच रहे हैं वो सही है। ठीक है, XYZ, मैंने उनको बोला था कि तुम इतने घंटे में 100 यूनिट्स बनाइए, लेकिन X ने 80 यूनिट्स बनाए, Y ने 100 यूनिट्स बनाए और Z ने 120 यूनिट्स बनाए। जहां पे 100 यूनिट्स बनाने का था वहां पे X ने सिर्फ 80 यूनिट्स से बनाए, Y ने 100 ही बनाए, लेकिन Z ने 120 बनाए। तो कहना से हु इज एफिशिएंट? कहने से X एफिशिएंट है? नो, इनएफिशिएंट। तो कहने से ये लेस देन 100 होना चाहिए, ये इक्वल टू 100 होना चाहिए और ये मोर देन 100 होना चाहिए। तो हमने पहला फॉर्मूला क्या रखा है? AO/SO चेक करते हैं।
80 upon 100, 100 upon 100 and 120 upon 100. तो ये आ गया 80%, 100% and 120%. क्या वो मैच कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं ना, मतलब ये फॉर्मूला राइट है और ये फॉर्मूला रॉन्ग है. Have you understood? Have you understood के how the formula is derived? Generally, अब ये जनरली एक्सेप्शन टू द रूल डिफरेंट है कि वो फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक जनरल मोटा मोटी हिसाब देखा जाए तो हमेशा याद में रखना, न्यूमरेटर में ना जो आपके सिचुएशन के हिसाब से बड़ा नंबर होता है ना, वो न्यूमरेटर में आना चाहिए. दो ही चीज है, देयर विल ऑलवेज बी टू थिंग्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. आप जिसका भी एफिशिएंसी परसेंटेज ढूंढना चाहते हो, याद रखना आपके कैलकुलेशन, आप जो कर जिसका फॉर्मूला निकाल रहे हो, ओके, उसमें जो बड़ा होना चाहिए आपके हिसाब से वो हमेशा न्यूमरेटर है. चेक करो यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स. अगर मैंने आपको बोला 10 घंटे में काम करके दो, अपने कम आवर्स में करके दिया, तो ये अच्छी बात है. तो कैन आई से एक्चुअल आवर्स शुड बी लेस, स्टैंडर्ड आवर्स शुड बी. इसलिए देखो फॉर्मूला क्या है, SH अपॉन H इंटू. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से इतने यूनिट्स बनाने चाहिए थे, आपने ज्यादा यूनिट्स बनाया तो अच्छी बात है. ओके ना, एक्चुअल आउटपुट इज मोर. ओके, क्या फॉर्मूला आया? A अपॉन SO इंटू 100. हैव यू अंडरस्टूड? इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ठीक है, तो प्लीज टेक डाउन.